Good morning, class. In the previous class, we have discussed various interviewing methods. Today, we will do our last topic of this unit, that is placement and induction. Okay? तो प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट मतलब जब आपने किसी भी एप्लीकेंट को आपने रिक्रूट किया, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर में आपने स्क्रीनिंग किया, उसके बाद आपने उसको सिलेक्ट किया डिफरेंट वेरियस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद देन आप यू विल प्लेस दैट एम्प्लॉय टू द करेक्ट प्लेस वेयर ही डिजर्व्स टू बी। मतलब उसको हम एक करेक्ट जॉब में, राइट जॉब में हम उसको प्लेस करेंगे, दैट इज नोन एज प्लेसमेंट। The last step in the procurement of employees is the placement of selected candidates on the right job and orienting them to the organization. Uh, in the previous class, I have also discussed HRM functions is divided into managerial functions and operational functions. In managerial functions, there are 5 types of managerial functions, that is planning, organizing, directing, staffing and controlling. Whereas in operational functions, it is subdivided into procurement, compensation, rewards, etc. Okay, and in this procurement, it is further categorized as human resource planning, job analysis, recruitment, selection, placement, induction. Okay, so we have done with human resource planning, we have done with job analysis, we have done with our recruitment and selection. Now we are doing placement. So it is the last, procurement and induction is the last step in the procurement of the employees in an organization. Okay, is that clear? हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन का कौन सा पार्ट पढ़ रहा है, ये आप सबको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पार्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्लेसमेंट इज द लास्ट स्टेप इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज of the selected candidates. We are placing the selected candidates on the right job and orienting them to the organization. What is orienting? Orienting means giving instructions, giving inducing them, like we are saying कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं तो आपका वेलकम हम करते हैं, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, आपका ये ड्यूटीज होंगे, आपके सीनियर कौन होंगे, आपके सबऑर्डिनेट्स कौन होंगे, उनको बताना, उनको फेमिलियर करना ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस से, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन. ओके, according to Pigors and Mayors, placement is the determination of job to which an accepted candidate is to be assigned and his assignment to that job. प्लेसमेंट एक डिटर्मिनेशन की, जॉब का डिटर्मिनेशन है कहाँ पर जो हमने एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स, जो हमने रिक्रूटमेंट करके सिलेक्शन करके जो कैंडिडेट को हमने सिलेक्ट किया है फॉर आवर डिजायरेबल जॉब, डिजायरेबल वैकेंसी, उसमें हम उनको करेक्टली प्लेस करें और उनको असाइन करें, उनको असाइनमेंट दें दैट पर्टिकुलर जॉब. ओके, it is the matching of what the supervisor has reason to think he can do with the job requirements. ये हम इसको कहते हैं मैचिंग ऑफ जो सुपरवाइजर है वो क्या चाहता है, उस इंसान से क्या करवाना चाहिए, कौन सा जॉब करवाना चाहिए और उसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो जॉब कर सकता है वो. तो इट इज अ मैचिंग ऑफ व्हाट द सुपरवाइजर्स हैज रीजन टू थिंक ही कैन डू, जो सुपरवाइजर सोच रहा है कि वो ये कर सकता है, एंड द जॉब रिक्वायरमेंट्स, जो जॉब की नेसेसिटी है उसका मैचिंग इज द प्लेस. ओके, it is the matching of what he imposes and what he offers in the form of payroll, promotion possibilities, etc. Placement is according होना चाहिए कि payroll क्या है, उसका promotional possibilities क्या है. जब उसको हमने select किया था तो हमने एक job description दिया था, job description जब हमने दिया था तो हमने लिखा था कि we are recruiting for a personnel who has IT skills. ठीक है, अब हमने उसको IT skills के लिए हमने रिक्रूट तो कर लिया, लेकिन at the time of placement we are placing in an HR department. That is not a correct placement, because what we have done, what we have selected that person
for which reason we have selected that person, we should apply that in the placement. Okay. It is the act of finally assigning the rank and responsibility to an employee. हम उसमें उनको rank और responsibility जैसे hierarchy में हम कौन से place में उनको place कर रहे हैं, कौन से job के लिए हम उनको place कर रहे हैं, हम उनको कौन सा rank दे रहे हैं, उसकी उनकी क्या क्या responsibility है, authority है, ये सब हम during the placement we orient them. Okay. हर इस प्लेसमेंट में डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं. दे आर 4 or 5 प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व फॉर मेकिंग अ प्लेसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय. जब हम एक प्लेसमेंट करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा. दैट दीज आर जॉब रिक्वायरमेंट. जिस जॉब की हमें ज़रूरत है, जो हमारी वैकेंसी है, उसमें जिस काम की ज़रूरत है, जिस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, what are the things which are required in that particular jobs should be kept in mind while placing an employee. Okay, a man should be placed on the job according to the requirement of the job rather than qualification and requirement of the man. जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, ना कि जो इंसान की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग. अब फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है गूगल. ओके, तो अब मुझे एज अ आईटी सॉफ्टवेयर मुझे वहाँ पर सिलेक्ट किया गया, मुझे रिक्रूट किया गया. उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद दे आर सेइंग कि आपको आईटी सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है. ठीक है, बट मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे आईटी सॉफ्टवेयर नहीं करना, मुझे पाइथन क्रिएट करना है. तो they will not place according to my requirement. They will place me according to their job requirement. Okay, so while making a placement, job requirement principle should be kept in mind. Okay, next is qualification. The job offered should match the qualification possessed by the employee. जो आप जिस पोजीशन के लिए उनको काम में रख रहे हैं, जिस पोजीशन, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप उनको दे रहे हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो क्वालिफिकेशन, वो एबिलिटीज उनके अंदर है या नहीं. अगर नहीं है तो आप उस जॉब पे नहीं डाल सकते. दैट विल हैम्पर योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दैट विल हैम्पर योर ग्रोथ. ओके, सो यू विल create a match between what the job required and what is the qualification of the employee. Sorry. All the information related to the job should be given to the employees along with the prevailing working conditions. जो भी information है about the organization, about the job, about the line managers, about the subordinates, about the superiors, everything should be clear. Everything should be told to the employee on the day he joined the organization. ठीक है, जो भी उनकी वर्किंग कंडीशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स है, नॉट प्लान्स एज सच, इन जनरल प्लान्स, उनके फ्यूचर में एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, इन सबसे उनको रूबरू करवाने की जरूरत है. ठीक है, इनफैक्ट ये भी बताने की जरूरत है कि व्हाट आर देयर इंसेंटिव प्लान्स. अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके इंसेंटिव्स कैसे मिलेगा, और अगर आप उसको गलत कर रहे हैं, कुछ काम गलत कर रहे हैं, या कॉर्पोरेटली कर रहे हैं, या फिर आप कलेश कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, then you will have to pay a penalty for the wrongdoing. Penalty in terms of leaving the job, or there are different policies according to the organization. Okay. Next principle is loyalty and cooperation. Every effort should be made to develop a sense of loyalty and cooperation in employees to make them understand their responsibilities. ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे, ऐसे इंडक्शन प्रोग्राम्स लाने चाहिए जिससे जो एम्प्लॉय हमने जिनको रिक्रूट किया, जिनको सिलेक्ट किया है, एक द प्रोसीजर के बाद हमने एक इंसान को, एक राइट पर्सन को फॉर द राइट जॉब वी हैव सिलेक्टेड, वी शुड make every effort to develop a sense of loyalty and cooperation for the organization. ठीक है, उस इंसान के अंदर कोऑपरेटिव होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए टू द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा तो नहीं कि हम उनको कोई पॉलिसी बता रहे हैं और वो जाकर अपने हमारे कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन को जाकर वो पॉलिसी बता दे रहे हैं. तो वो जो चीज़, वो जो क्वालिटीज़ है, वो जो स्किल्स है, वी शुड मेक एवरी एफर्ट टू डेवलप दैट. ओके, as an organization. Now, what are the importance of placement? Placement is very important because if the person is not placed on the right job, that will obviously hamper the organization. ठीक है,
If the employees are properly placed, they will enjoy their work and organization will not have to suffer the problem of employee turnover. For example, अगर मैं किसी मुझे एक ऐसे जॉब में प्लेस कर दिया गया है, मुझे ऐसे काम में काम करने के लिए बोला है, जैसे मुझे सिलेक्ट किया गया था कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, लेकिन मुझे एक फाइल्स दे गई कि उसको बस टाइपिंग करना है, तो मुझे वो काम अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वो बहुत मोनोटोनियस वर्क हो जाएगा, दैट इज नॉट मेड फॉर मी। तो मैं क्या करूँगी, छुट्टी लेना स्टार्ट कर दूंगी, फिर मैं बहाने मारूंगी कि मुझे नहीं करना है। तो दिस विल सफर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इससे क्या होगा, ऐसे अगर आप डिफरेंट बहुत सारे लोग ऐसे ही आप जिस टास्क के लिए आपने उनको जॉब में रखा था वो आप उनको नहीं दे पा रहे हैं, वो काम आप उसी काम के लिए आप नहीं रख रहे हैं उनको, तो दैट विल लीड टू द एम्प्लॉय टर्नओवर। एंड एम्प्लॉय टर्नओवर मीन्स वो आएंगे नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। Next importance of placement is if employees don't like their work, they start making excuses for the job and remain absent. Effective placement will keep the absenteeism rate low. अगर एक effective placement है जहाँ जिस काम के लिए आपने उसको recruit किया था, select किया था, उसी काम में आपने उनको रखा है, place किया है, तो इससे क्या होगा, absenteeism जो rate है वो low होगा, मतलब number of persons are absent in a particular day will be low. Morale of the workers increases because they get the work of their choice if correctly placed. जब मैंने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन देखा था तो उसमें लिखा हुआ था कि मुझे एक डिसीजन मेकिंग टास्क के लिए रखा जाएगा, तो इसलिए मैंने इंटरव्यू दिया, इसलिए मैंने अपना 100% दिया, तभी मुझे सिलेक्ट किया गया। ठीक है। उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजेशन में आई और मुझे पता चला कि मुझे वो काम दिया ही नहीं गया, मुझे सिर्फ मॉनिटरियस वर्क दिया जा रहा है कि फाइल से देखकर मुझे टैली करना है, या फिर मुझे फाइल्स के थ्रू मुझे डाटा अपलोड करना है इन एक्सेल शीट्स। दैट इज नॉट माय थिंग, दैट इज नॉट द चॉइस ऑफ वर्क आई हैव चूजन, दैट इज नॉट द वर्क ऑफ माय चॉइस। ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा मोराले डाउन होगा। ठीक है। तो अगर मैं करेक्टली प्लेस्ड होती, जैसे मुझे कहा गया था मैं डिसीजन मेकिंग रोल पे होती, तो ऑब्वियसली मेरा मोराले हाई होता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बना रहता उस काम के लिए। ठीक है। Next point is workers will work attentively and safety of workers will be ensured and lesser accidents will happen. अगर मुझे उस काम के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वर्कर हूँ, एक फैक्ट्री में एक वर्कर हूँ, और मुझे बोला गया था कि मैं जो मशीन को डायरेक्टली हैंडल करूँगी, लेकिन जब मुझे प्लेस किया गया तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे डायरेक्टली हैंडलिंग नहीं दिया जा रहा है, मुझे मशीन पर ऑयल डालने का काम दिया गया है। ठीक है। तो मेरा मोराले डाउन होगा, मुझे काम करने का मन नहीं करेगा क्योंकि मेरा वर्क ऑफ चॉइस नहीं है, तो मेरा टेंशन लेवल लो होगा, तो इससे क्या होगा, मेरे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, मशीन के अंदर हाथ आ गया या फिर कुछ भी एक एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। When we are not placed according to our job description. Okay. Workers will be satisfied with their jobs and there will be no reasons for disputes. No human relations will be human relations will be improved. अगर वर्कर्स खुश है तो कोई डिस्प्यूट्स नहीं होगा, कोई डिस्प्यूट्स नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। थ्रू प्रॉपर प्लेसमेंट्स मिसफिट बिटवीन जॉब एंड पर्सन कैन बी अवॉइडेड। अगर अच्छे जगह पर प्लेस किया जाएगा, मतलब अगर वर्क ऑफ चॉइस के अकॉर्डिंग, मतलब नॉट नेसेसरी कि जैसे आप मैं 2 पॉइंट है, एक कि जब आपके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉय को प्लेस किया जा रहा है, दैट इज वेल एंड गुड, बट आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है and you are not placing that person according to that is wrong. Okay. We are coming to our next topic which is induction and orientation. हमारे procurement का last step था placement and induction. We are done with placement. Now we are doing our second part, that is induction. Induction क्या है? It is a process of welcoming, introducing and socializing the new entrants to the existing group of people. Sometimes क्या होता है कि एक बल्क में रिक्रूटमेंट होता है, एक बल्क में सिलेक्ट करते हैं वर्कफोर्स को, जैसे किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू एसएससी अगर ले रहे हैं
तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में सिर्फ 5 लोगों को नहीं सिलेक्ट करते हैं, इसमें नंबर ऑफ पीपल मोर इज मोर लाइक 30, 35, 40. ओके, तो अब 30 को 1 by 1 को हम इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, 1 by 1 हम बता नहीं सकते कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, आपको किस तरीके से बिहेव करना है, व्हाट शुड यू वेयर, व्हाट शुड यू डू, ये सब हम 1 by 1 नहीं बता सकते. तो एक ग्रुप ओरिएंटेशन या ग्रुप इंडक्शन होता है. इवन अगर आप लोग देखें कि कोई आप अगर किसी स्कॉलरशिप ट्रिप में जाते हैं या फिर आप किसी सेमिनार में जाते हैं, तो सबसे पहले ओरिएंटेशन होता है, इंडक्शन होता है, where they welcome you, where they introduce themselves and they try to socialize with you. Okay, that this process is the induction. This process is also known as orientation. Okay, where the new entrance is welcomed, introduced and socialized with the existing group of people. Okay, it is a technique by which an employee is rehabilitated into the surroundings and introduced to the practices, policies and purposes of the organization. ये एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पर जो न्यू एम्प्लॉयज होते हैं, जो न्यू एंट्रेंस होते हैं, उनको जो सराउंडिंग्स है, जो एनवायरमेंटल, जो ऑर्गेनाइजेशनल सराउंडिंग्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशन की जो कल्चर है, उनसे उनको रूबरू करवाते हैं and they introduce them with the practices, policies and the purposes of the organization. Okay, large organization do give a formal orientation to its employee. It is a well structured and systematic orientation program, and informal orientation is given in small organizations by the supervisors. जैसे कि मैंने कहा, जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बल्क में अगर कोई बहुत सारे न्यू एंट्रेंस आ रहे हैं, जैसे 30, 40, 50 या मोर देन दैट 100, 500, then they organized a formal orientation. जैसे उनका अगर कोई ऑडिटोरियम है या फिर उनका कोई सेमिनार हॉल है, वहाँ पर सब एक साथ ओरिएंटेशन कर रहे हैं, जो कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है कि पहले प्रेयर होगा, उसके बाद फेलिसिटेशन होगा, उसके बाद वेलकमिंग स्पीच होगा. ऐसे एक सिस्टमैटिक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वेल स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स आर देयर इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और वेयर देयर इज अ बल्क recruitment or bulk new entrants in the organization, whereas an informal orientation is given in small organization by the supervisors, जहाँ पर कम लोगों को रिक्रूट किया गया, जैसे 1-2 लोग रिक्रूट किया गया है, 5 लोगों को रिक्रूट किया गया है, तो उनके लिए पूरा ऑडिटोरियम तो बुक नहीं करेंगे या एक सेमिनार हॉल तो लेकर नहीं जाएंगे. तो वो क्या करते हैं, एक छोटे से रूम में, एक जहाँ पर सुपरवाइजर का रूम होता है, वहाँ पर उन लोगों को बुलाकर एक स्मॉल ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रैक्टिसेस, पर्पसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बताते हैं. ठीक है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू आवर स्कॉलर एडविन बी फिल्पो, he said that induction is the welcoming process to make the new employee feel at home and generate in him a feeling of belongingness to the organization. इंडक्शन एक वेलकमिंग प्रोसेस है, जिससे जो एम्प्लॉय है उसको लगे कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया है, वो घर जैसा है. ठीक है. फील एट होम एंड जनरेट इन हिम अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन. एक बिलोंगिंगनेस ऑफ टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन कि हाँ, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसके लिए काम करूंगा, अगर इसके गोल्स अचीव होते हैं तो दैट विल बेनिफिट मी आल्सो. ठीक है. Now let's come to the importance of induction. What are the importance of inductions? It reduces new employees' anxieties and providing an opportunity to know about the organization and its people. जब आप किसी भी न्यू जॉब में स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक एंग्जाइटी होता है, आपको एक घबराहट होता है कि मैं क्या सारे लोगों से घुल मिल पाऊंगी, या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होगा, उसके साथ मैं कोप अप कर पाऊंगी कि नहीं. तो थ्रू एन इंडक्शन, थ्रू प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये जो एम्प्लॉयज की एंग्जाइटी है, जो घबराहट है, वो कम होती है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन और उनके लोगों के बारे में, उनके कलीग्स के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जान पाते हैं. एक अच्छा इंट्रैक्शन होता है. ठीक है. It helps the new employees in knowing the expectations of organization and its executives. थ्रू अ प्रॉपर इंडक्शन एक एम्प्लॉय को भी पता चलता है कि मेरा जो सुपीरियर है, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या टारगेट्स दे आर सेटिंग फॉर मी, और एग्जीक्यूटिव के साथ ही एक
रिलेशनशिप क्रिएट होता है, एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है। इट फॉस्टर्स अ यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग अमंग द एम्प्लॉइज अबाउट द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, स्ट्रैटेजीज एंड व्हाट द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इट्स पीपल। एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है एम्प्लॉय और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रैटेजीज के बीच में एक मैच क्रिएट होता है कि एम्प्लॉयज को समझ में आता है कि कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी की पॉलिसीज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है और कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है उसके एम्प्लॉय से, ठीक है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है जब एक एम्प्लॉय आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है जहाँ पर इंडक्शन प्रोग्राम नहीं होता है, so he requires a much more time to be involved in the organization uh, than an organization where there is a proper induction program. तो एक positive attitude create होता है जहाँ पर induction होता है कंपनी की तरफ, कंपनी के towards the company, towards the stakeholders, towards the employees कि हाँ they are thinking about me. Okay? It builds and strengthens two-way communication in the company. In by looking into the communication system, हमेशा टू वे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वे कम्युनिकेशन बहुत मोनोटोनियस हो जाता है, जैसे कि एक रूलर और एक उसके जो कर्मचारी होते हैं वर्कर, उसमें उसकी टाइप का रिलेशनशिप हो जाता है कि एक रूलर बोल रहा है कि आप ये करोगे तो बस ये करोगे, देन वर्कर इज नॉट एबल टू ask anything or tell anything, okay? That is a one-way communication and that hampers the organizational goals, that hampers the growth of the organization. But where there is a two-way communication, where the superior is telling that you have to do this work and subordinate is responding to that, the subordinate is giving some responses, subordinate is giving some ideas regarding that particular decisions, that will create a two-way communication and obviously that will strengthen the company's organizational objective. Okay. We are coming to the types of induction. There are four types of induction. एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंडक्शन, एक होता है डिपार्टमेंटल इंडक्शन, एक होता है पर्सनल इंडक्शन, ह्यूमन इंडक्शन एंड फोर इज जॉब इंडक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशनल इंडक्शन में क्या होता है कि पूरा एज अ ऑर्गेनाइजेशन यू आर प्रेजेंटिंग, you are welcoming the new entrants, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन, गोल्स, स्ट्रैटेजीज, ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटअप हुई है, कौन से लोकेशन में है, आपकी प्रमोशन की क्या पॉसिबिलिटीज है, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटी में रह सकते हैं या फिर आप प्रमोट होकर डिफरेंट सिटी में भी जा सकते हैं, ये सब ब्रीफिंग दिया जाता है इन ऑर्गेनाइजेशनल इंडक्शन, ठीक है। और इसके बाद आता है डिपार्टमेंटल इंडक्शन। डिपार्टमेंटल इंडक्शन में क्या है कि जैसे आपको प्लेस कर दिया गया है कि आप एचआर डिपार्टमेंट में जाएंगे या फिर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है that person will start this induction program, that person will be the head of this induction program where he will tell the new entrants about that particular department where he or she has to work and the इंटरडिपेंडेंसी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस किस के साथ इंटरडिपेंडेंट है, जैसे सेल्स के साथ डिपेंडेंट है, उसका परचेसिंग डिपार्टमेंट के साथ अगर डिपेंडेंसी है तो किस डिपार्टमेंट से उनकी डिपेंडेंसी है और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या वर्क है, उस इंसान का क्या वर्क है उस डिपार्टमेंट में, तो उसके सप्लायर्स कौन है, कस्टमर्स कौन है, ये सब बताया जाता है इन डिपार्टमेंटल इंडक्शन। In addition, they are told about related departments such as planning, store, quality control and maintenance department. ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताते हैं, साथ ही इंटरडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में भी बताते हैं। जॉब इंडक्शन, the new recruiters are oriented to job or task they are supposed to perform. In the job induction, they are told about their duties, responsibilities, working conditions, criticality of the job and the function components in assembling, quality parameters and inspection criteria, etc. How they will do the job, what will be their responsibility, what is the criticality of the job, these all are told in the job induction. Okay. Next is human induction, where the new recruiters are introduced to all the personnel, all the workforce within the organization with whom they would have to interact frequently. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में थाउजेंड्स, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में थाउजेंड्स, 10,000 लैक्स में एम्प्लॉयज होते हैं लेकिन वो सबके साथ तो
उसको मिला नहीं सकते, वो उन्हीं के साथ इंट्रोडक्शन करवाते हैं, वो उनके साथ बातचीत उनकी स्टार्टिंग में करवाते हैं जिनके साथ उनको पता है कि इन फ्यूचर ड्यूरिंग हिज जॉब he have to interact with them frequently. ठीक है? So in human induction, all the personnel with whom they would have to interact frequently are being introduced. Okay? So these are the four types of induction. Now, what are the various barriers to the induction? अगर induction अगर ओवरलोडेड होगा, इंडक्शन एक प्रॉपर वे में नहीं होगा, वेल स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होगा, तो उसकी जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेगा टू द न्यू एंट्रेंस। अगर सुपरवाइजर बहुत बॉसी है या फिर वेल ट्रेंड नहीं है, उसको पता नहीं किस टाइप से इंडक्शन करवाना चाहिए, किस टाइप से ओरिएंटेशन करवाना चाहिए, तो भी एक अच्छा इंडक्शन प्रोग्राम नहीं बन पाएगा। ठीक है? और किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट डे में वो लोग फॉर्म से फिल करवाने लग जा रहे हैं कि आप ये वाला फॉर्म में से साइन कीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में भी साइन कीजिए, आप इसमें भी साइन कीजिए, आपका इंश्योरेंस में भी साइन कीजिए। तो बहुत सारे फॉर्म्स दे देते हैं जिसके वजह से जो न्यू एंट्रेंस है वो ओवरलोडेड हो जाते हैं और वो इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है? और अगर कोई फॉल्टी प्रोसेस इंडक्शन में यूज किया जा रहा है तब भी एक इंडक्शन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है? The new employees may be asked to perform challenging tasks initially where chances of failure are high. This might discourage job involvement, interest and commitment. अगर कोई इंडक्शन प्रोग्राम नहीं होगा और उसको डायरेक्टली बोल देगा कि आप ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए, तो दैट मे बी चैलेंजिंग फॉर द न्यू एंट्रेंट बिकॉज ही इज नॉट well versed with that job. So he might feel discouraged because he is not involved in that particular job, and his interest and commitment will decrease gradually. Yeah. So we have end with our unit 2. Now we will start with our unit 3, that is training and development. In training and development, we will do the concept and importance of training and development, and then we will do the identifying training and development needs, designing training program, how a training program is designed. Apart from this, we will look into the methods of training and development, management development programs, and how we can evaluate the training effectiveness. Okay, these things will be done in unit 2. Now let's start it. What is training and development? We always come across these terms in human resource management. Before we get into that, what is the main core, what is the main definition of training and development, I will like to quote a statement. If you wish to plan for a year, sow seeds. If you wish to plan for 10 years, plant trees. If you wish to plan for a lifetime, develop people. अगर आपको एक साल के लिए अगर प्लान करना है तो आप सीड्स को रोप कीजिए, सीड्स को सो कीजिए। अगर आपको 10 ईयर का प्लान करना है तो आप एक ट्री लगाइए। ठीक है? लेकिन आपको अगर लाइफ टाइम का प्लान करना है कि आपको एक लाइफ टाइम सिक्योरिटी चाहिए, आपको अगर लाइफ टाइम भरोसा चाहिए, देन यू शुड डेवलप अ पीपल. So what is training and development? It is an attempt to improve the current or future employee performance by increasing the employee's ability to perform through learning, usually by changing the employee's attitude or increasing his or her skills and knowledge. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या है? एक अटेम्प्ट है। ठीक है? एक अटेम्प्ट है एक एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने का। एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, जो न्यू एंट्रेंस है वो भी हो सकते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन में उनकी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करने के लिए वी डू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. ठीक है? By giving training and development, we are increasing an employee's ability to perform. Okay, we are increasing the ability to perform through learning, and we are changing their attitudes and increasing his or her skills and knowledge. Okay, in this particular definition, in this particular way, we have discussed many things. It is an attempt to improve the current or future employee performance. We are increasing the employee's ability through learning, and we are changing the employee's attitude, and we are increasing their skills and knowledge. Okay.
So what are the philosophy of training? ट्रेनिंग के पीछे क्या आइडिया है, मतलब ये जब स्टार्ट हुआ था तो इसके पीछे क्या आइडिया था, क्यों इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्यों ये एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. According to S. Chandra, management of organization firmly believes that human assets, unlike other assets, cannot be depreciated and must necessarily be appreciated over entire tenure. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लायबिलिटीज एंड असेट्स होते हैं. बैलेंस शीट में हम लायबिलिटीज एंड असेट्स लिखते हैं. असेट्स में जितने भी असेट्स है वो जो फिक्स असेट्स है वो सब डिप्रिशिएट होते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, वो सब डिप्रिशिएट होते हैं. हम डिफरेंट डिप्रिशिएशन मेथड्स यूज करते हैं जो कि आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा. ठीक है, अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं डिप्रिशिएशन. लेकिन ह्यूमन असेट्स एक ऐसा असेट है जो कि कभी डिप्रिशिएट नहीं होता है. ठीक है, आप उनका कोई डिप्रिशिएशन नहीं कर सकते हैं अदर एंड बट आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं. लाइक नॉट अप्रिशिएशन इन दैट सेंस, अप्रिशिएट मतलब आप उनका जो वैल्यू है उनको इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, इन डिप्रिशिएशन वी आर रिड्यूसिंग देयर वैल्यू, इन अप्रिशिएशन वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन एज एन एसेट. ठीक है, एंड इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय गिविंग रेगुलरली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सो वी कैन से दैट ट्रेनिंग इज रिगार्डेड एज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट अ कॉस्ट. एग्जाम में ये चीज भी कोट होकर आ सकता है. ट्रेनिंग इज रिगार्डेड एज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट कॉस्ट. डू यू थिंक व्हाई? एक्सप्लेन. ओके, देन यू हैव टू tell everything about the philosophy of training, about its importance, about what is development, its differentiation. You have to tell everything in this after explaining why you are thinking that training is regarded as investment and not cost. Because we are investing in the human assets which only appreciated, not depreciated over a tenure, over a period of time. Okay? Even long-term intangible gains such as attitude change are to be considered as valuable returns. अगर किसी इंसान के एटीट्यूड में चेंज आ रहा है, किसी इंसान के स्किल्स में चेंज आ रहे हैं फॉर बेटरमेंट, दे आर इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, दैट इज अप्रिशिएबल, दैट इज अ great valuable assets for the organization. Training is considered as a vehicle for effective communication and coordination. ट्रेनिंग को एक ऐसा माध्यम माना गया है जिससे कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का जो थ्रेड है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है. जहाँ पर एक अच्छा प्रॉपर ट्रेनिंग होगा वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप्स नहीं होंगे. ठीक है, कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होगा. सो ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड एज अ व्हीकल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन. ट्रेनिंग इज अ कैटलिस्ट in any man management matrix for compatibility and cooperation in every organization. एक ट्रेनिंग एक कैटलिस्ट है, एक लिंक है मैन मैनेजमेंट मैट्रिक्स. मैन मैनेजमेंट मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होता है जिसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर एक मैन या फिर एक पर्सन को किस वे में मैनेज किया जा सकता है. ठीक है, तो इट इज a link for an effective man management matrix which tells the compatibility and cooperation in every organization. इससे पता चलता है कि जो पर्सनल है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन एसेट्स है, वो कितने compatible है towards the organizational goals and how they are cooperative to the other employees, other supervisors and subordinates in the organization. It is about developing employees as an individual to make them capable and confident in their jobs and consequently in their life. ट्रेनिंग जो है एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, लेकिन डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ट्रेनिंग आप एक पर्टिकुलर पीरियड में देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर देते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो आप थ्रू आउट करते जाते हैं. ठीक है, so developing employees as an individual to make them capable and confident in their jobs and consequently in their life. Thus, it is an organized process of increasing the knowledge and skill of an employees. In development, you are doing an organized process. Even in training, you are doing an organized process for increasing their knowledge, skills, and abilities of the employees. Okay, it may be the existing employees, it may be the new employees. Consequently, it is a process aimed at changing the behavior in such a way that consequence
be useful for upliftment of the organization. ये हम इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जिससे बिहेवियरल चेंजेस आए एम्प्लॉयज में, जो गैप्स है वो कवर अप हो और एक अपलिफ्टमेंट हो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है. Now, what scholars have defined training? Edwin Filpo has defined training as the act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job. एक पर्टिकुलर जॉब में, फॉर एग्जाम्पल मैं एक HR प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, नॉट HR मैनेजर, आई एम HR प्रोफेशनल. सो माय जॉब इज टू डू द कंपनसेशन मैनेजमेंट. जब मैं कंपनसेशन मैनेजमेंट कर रही हूँ तो मुझे कुछ एक्सेल में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं MS एक्सेल से इतनी वेल वर्स नहीं हूँ. सो दे आर प्रोवाइडिंग मी ट्रेनिंग इन MS एक्सेल टू मेक मी वेल वर्स्ड विद द सॉफ्टवेयर विच इज MS एक्सेल, so that I can do my job efficiently and effectively. So मैंने इसमें क्या क्या एज अ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देकर उन्होंने मेरा एज अ एम्प्लॉय स्किल एंड नॉलेज इंक्रीज किया फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. ओके. According to Weiner F. Cascio, training consists of planned program designed to improve performance at individual, group और organizational levels. ये एक planned program है जो कि इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए होता है, नॉट ओनली इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. Improved performance in turn implies that there have been measurable changes in knowledge, skills, attitudes और social behavior. जहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगा वहाँ पर नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स और सोशल बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगे. Training is considered as a tool for HRD. HRD जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके 3 टूल्स होते हैं. एक होते हैं ट्रेनिंग, सेकेंड इज डेवलपमेंट एंड थर्ड इज एजुकेशन. ठीक है. These are the tools for human resource development and one of the tools of human resource development is training. Training has immense potential in transfer and utilization of latest technical know-how, leadership development, organization of people, formation of self-help groups, mobilization of people as well as resources, etc. Through training, we can transfer the existing employees. अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर जॉब है जहाँ पर मुझे नंबर ऑफ 10 प्रोडक्ट्स बनाने हैं इन अ फैक्ट्री, ठीक है, लेकिन मेरी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास स्किल्स नहीं है, तो मैं 7 प्रोडक्ट्स ही बना पा रही हूँ. ठीक है, लेकिन वो जो 7 प्रोडक्ट्स बन रहा है वो एकदम परफेक्ट बन रहा है, उसमें 100% एक्यूरेसी है. तो मुझे शायद एक प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद मुझे एक दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दे, जहाँ पर डिफरेंट मशीन में शिफ्ट कर दे, जहाँ पर एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, वहाँ पर क्वांटिटी मैटर नहीं करता है. तो ट्रेनिंग नॉट ओनली हेल्प टू इंक्रीज द स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड एंड सोशल बिहेवियर ऑफ एन employee, but it also helps to transfer the existing employee from one particular job to another particular job, so that we can utilize the latest technical know-how, we can utilize the leadership development, we can do the leadership development through training. Through proper training we can organize the people in an effective way. जब किसी भी काम में किसी कोई गैप है, आप वो काम ठीक से कर नहीं पा रहे, कोई स्किल्स में आपकी कमी है, किसी नॉलेज में आपकी कमी है, तो थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग यू आर giving that person a proper training, and you are placing that person in a job where they can work effectively and efficiently. So you are organizing the people in a proper structure, in a proper way, where their work will be more effective and efficient. Okay. Not only that, you are mobilizing the people as well as the resources. You are empowering the resources. You are doing the entrepreneurship development. Through training, we are developing the personnel in such a way that they can do their own thinking, they can have a creative thinking, they have their innovation, which leads to the entrepreneurial development, which are considered essential components of human resource development. Okay.
Okay. Now let's come to the what is development. Development is defined by Alan Mofford as an attempt to improve manager effectiveness through a planned and deliberate learning process. ये एक ऐसा attempt है to improve the manager effectiveness through a planned and deliberate learning process. ये एक long term process है, ठीक है? ये आप continuous process है. ये इससे आप manager effectiveness जो managers है उनकी effectiveness को आप increase कर रहे हैं, उसको improve कर रहे हैं. ठीक है. According to Bernard M. Bass and James A. Vaughan, development implies the nature and change induced among employees through process of education and training. Development एक ऐसा process है जहाँ पर आप employees का जो nature है, employees की जो behavior है, उसको change कर रहे हैं through training and education. ठीक है. Development is related to the enhancing the conceptual skills of employee, which helps individual towards achieving maturity and self-actualization. Through development, we are enhancing the skills of the employee, conceptual skills. Okay? साथ में we are achieving a maturity and self-actualization for that employee. उनकी maturity increase हो रही है, ठीक है? उनमें एक self actualization आ रहा है कि they are knowing what are their worth for the organization, what are their particular worth in the country, worth in the world as a whole. They are getting the self actualization through development programs. It has been known by several names. Development को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे employee development, human resource development, and learning and development. Okay. What are the basic difference between training and development? We'll come to that. Before that, we will do the main definitions of training, development, and education. Just like I have said, human resource development programs are divided into three categories: training, development, and education. Training, it is the acquisition of technology which permits employees to perform their present job to standards. जो भी उनका एक स्टैंडर्ड है और एक जॉब का एक जो स्टैंडर्ड पहले से ले डाउन किया गया है, पहले से बताया गया है, वहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट. ट्रेनिंग के थ्रू आप उस जॉब तक पहुँच सकते हैं अगर आपके स्किल्स में, आपके नॉलेज में कोई कमी है. ठीक है. It improves human performance on the job the employee is presently doing or is being hired to do. जो ह्यूमन परफॉर्मेंस है, जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है, वो इंक्रीज होता है इसलिए वो काम करने के लिए, जिस काम के लिए उसको हायर किया गया है. इट ऑल्सो गिव देम इट इज ऑल्सो गिवन व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ वर्कप्लेस. ऐसा भी होता है जैसे आप बहुत कैपेबल है, आपके पास इनफ स्किल्स है, आपके पास इनफ एबिलिटीज है टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब, बट व्हेन देयर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी, व्हेन देयर इज अ चेंज इन इक्विपमेंट, वी ऑल्सो गिव ट्रेनिंग. ओके. जैसे एक फैक्ट्री है, वहाँ पर एक मशीनरी न्यू इंट्रोड्यूस की गई है, तो उस मशीन को कैसे चलाना है, उस मशीन का क्या यूज है, उसको किस वे से एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वी कैन मैनेज दैट मशीन. फॉर दैट वी आल्सो गिव ट्रेनिंग टू आवर वर्कफोर्स. Now, what is development? Development is training people to acquire new horizon technologies or viewpoints. Training जो डेवलपमेंट है वो एक नैरो कंसेप्ट नहीं है, दैट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट. ट्रेनिंग कम्स अंडर डेवलपमेंट. इन डेवलपमेंट वी आर ट्रेनिंग पीपल टू acquire new horizons, technologies or viewpoints. Through development we are making the employees to have some viewpoints. We are making them to do some creative thinking. We are making them to do innovations. It enables leaders to guide their organization onto new expectations by being proactive rather than reactive. Through development, we are making them proactive. Okay, we are making them active for a particular job. We are making them that we should first think about that and then we should react. That is the proactive. Okay, it enables workers to create better products, faster services, and more competitive organization. जिस ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पर एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनता है, एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनता है, वहाँ पर एक फास्ट सर्विसेज होते हैं, जो प्रोडक्ट्स क्वालिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि
एक क्रिएटिव थिंकिंग है वहाँ पर, एक इनोवेशन है वहाँ पर, एक प्रोएक्टिव थिंकिंग है वहाँ पर, एक कॉम्पिटिटिव जज्बा है। तो एक डेवलप ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें एक और उसकी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में बहुत हेल्प होता है थ्रू डेवलपमेंट। इट इज द लर्निंग फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल बट नॉट रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर जॉब। ये एक लर्निंग है, डेवलपमेंट इज अ लर्निंग, कोई एक स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है, एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग है। ठीक है, to education. What is education? Education is training people to do a different job. It is often given to people who have been identified as being promotable, being considered for a new job, either lateral or upward, or increase in their potential. Education भी एक ट्रेनिंग है to do a different job. ठीक है, जो ट्रेनिंग है वो for existing job के लिए, ठीक है, और जो एजुकेशन है वो कोई दूसरा जॉब करने के लिए हम उनको एजुकेट करते हैं। ठीक है, उनको अगर प्रमोशन हो रहा है या फिर वो किसी न्यू जॉब में उनको शिफ्ट किया जा रहा है लैटरली या अपवर्डली, या उनको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा है, तो फॉर दैट वी विल गिव देम एजुकेशन। ओके, वी एजुकेट देम। Unlike training, which can be fully evaluated immediately upon the learners returning to work, education can only be completely evaluated when learners move on to their future job or task. जब ट्रेनिंग कैसे इवैल्यूएट होता है, जैसे कि हमने अभी एक पर्सन को ट्रेनिंग दिया, जैसे ही वो अपने काम पर वापस आया हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमने आपको जो ट्रेनिंग दिया वो आपने उसको अप्लाई किया कि नहीं। ठीक है, आपके स्किल्स इम्प्रूव हुए हैं कि नहीं, आपके एबिलिटीज इम्प्रूव हुए कि नहीं। लेकिन एजुकेशन में हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग जॉब में जॉब को बेटर करने के लिए, उसकी स्किल्स को बेटर करने के लिए नहीं करते, हम क्या करते हैं उसके फ्यूचर में या फिर उसकी कोई प्रमोशन हुआ है उसमें अगर कोई लैटरल चेंज आया है उसकी जॉब पोजीशन में, या कोई अपवर्ड चेंज आया है जॉब पोजीशन में, उसमें जो काम होगा उसको उसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए वी गिव देम एजुकेशन। तो एजुकेशन कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है, जब वो लर्नर वहाँ उस काम पर पहुँच जाएगा, उस फ्यूचर जॉब और टास्क में पहुँच जाएगा, तब जब वो काम करेगा तब जाके हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग कैन बी इवैल्यूएटेड इमीडिएटली जस्ट व्हेन द ट्रेनिंग प्रोग्राम ends, but education needs time। ठीक है, जब एजुकेशन जब वो पर्टिकुलर वर्कफोर्स एक पर्टिकुलर जो जॉब में है वहाँ पर वापस जाएगा, वो जॉब को ज्वाइन करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म होगा, तब जाकर एजुकेशन का इफेक्टिवनेस पता चलेगा। ठीक है, नाउ एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग जैसे कि इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स। एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ नॉलेज और स्किल्स इंक्रीज किया जाता है, वेराज डेवलपमेंट में लर्निंग एंड ग्रोथ होता है, एक ग्रोथ आती है, एक लर्निंग प्रोसेस है। ट्रेनिंग का पर्पस है टू एनेबल द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर। जो जॉब पर्टिकुलर जॉब में है उसको बेटर करने के लिए, उसके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। वेराज इन डेवलपमेंट इट एनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए डेवलपमेंट नहीं किया जाता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट इसलिए किया जाता है ताकि वो ओवरऑल उसकी ग्रोथ हो। अगर वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी जाता है तो उस डेवलपमेंट का उस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम है। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, orientation of training is it is a job oriented process whereas development is a career oriented process। जो ट्रेनिंग है वो अब पर्टिकुलर जॉब ओरिएंटेड है। जैसे कि मुझे MS Excel नहीं आ रहा है तो मुझे MS Excel सिखाया जा रहा है, दैट इज अ ट्रेनिंग। ठीक है, दैट इज अ जॉब ओरिएंटेड। मेरा काम है MS Excel में काम करने का, डाटा एंट्री करने का, लेकिन मुझे फॉर्मूलाज पुट करना नहीं आ रहा है MS Excel में, तो दे आर गिविंग मी ट्रेनिंग एज अ ऑर्गेनाइजेशन, so that is a job oriented process। okay, whereas if they are doing some development programs, they are making my growth as a employee। okay, that is a career oriented process। career oriented because अगर मैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी ज्वाइन करती हूँ, that development program, that development will stays within me। okay, in training skills our technical skills are important। ठीक है, jobs are related to the technical skills। तो technical skills जैसे MS Excel is a technical skills for the computer for me। ठीक है, तो through training it imparts jobs related to technical skills, but in development it shapes attitudes and
imparts technical, human and conceptual skills. डेवलपमेंट से हमारे एटीट्यूड्स चेंज होते हैं, हमारे बिहेवियर्स चेंज होते हैं, साथ साथ में एक टेक्निकल एंड ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल स्किल्स में भी चेंजेस आते हैं. ठीक है, हमारा जो एक नजरिया है उसमें चेंज आता है, हमारा एटीट्यूड में चेंज आता है, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, हमारा एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, लॉयल्टी, ये जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है इन डेवलपमेंट. पर्सपेक्टिव क्या है ट्रेनिंग का? इट इज अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, व्हेयरएज डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है, डेवलपमेंट करते रह होता है, ट्रेनिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के साथ होता है. ठीक है, नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग? ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमी इन ऑपरेशंस. Trained personnel will able to make better and economical use of materials and equipments. अगर मुझे MS Excel आता है, ठीक है, तो मुझे ट्रेनिंग दिया गया है MS Excel का, मैं उस स्किल को मेरा बेटर हो गया है, मेरा पर्टिकुलर स्किल, तो मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम कम होगा. ठीक है, मैं एरर्स में कम करूँगी, एक कॉस्ट जो है वो कम होगा. तो जब एक ट्रेनिंग दिया जाता है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वेस्टेज कम होता है, इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज होता है. ठीक है, साथ ही साथ एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी कम होते हैं. जैसे फैक्ट्री में अगर किसी वर्कर को ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो उसको एक एफिशिएंट वर्कर बनाया जा रहा है, उसको उस पर्टिकुलर स्किल्स एंड एबिलिटीज को इंक्रीज किया जा रहा है. तो इससे क्या है, जो मशीनरी है उसमें एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है, बिकॉज दे आर वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज. दिस विल लीड टू द लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट. अगर वेस्टेज कम होगा, अगर एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली दैट विल लीड टू द लेस कॉस्ट पर प्रोडक्शन पर यूनिट. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना कॉस्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट. ग्रेटर प्रोडक्टिविटी इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेन. अगर एक वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा तो उसको ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होगी. ठीक है, जैसे कि अगर मुझे MS Excel आता नहीं था, मुझे MS Excel सिखाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है. ठीक है, तो जहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी वहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंक्रीज होगा. ठीक है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज होगा. तो जहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, वहाँ पर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है. परफॉर्मेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी अचीव हो रहा है, आपकी ग्रोथ भी आ रही है क्योंकि वेस्टेज कम है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है. ठीक है, एंड इंक्रीजिंग द स्किल्स यूजुअली हेल्प्स टू इंक्रीज बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द आउटपुट. आपकी क्वांटिटी भी अच्छी हो रही है, साथ में क्वालिटी भी अच्छी हो रही है इन ट्रेनिंग. Is uniformity of procedures. With the help of training, the best available methods of work can be standardized and made available to all employees. जहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगा तो एक स्टैंडर्डाइजेशन होगा कि जैसे एक पेंसिल या एक मार्कर को बनाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा कि पहले मुझे आउटर कवर बनाना पड़ेगा, फिर मुझे इसका ढक्कन बनाना पड़ेगा, इसके अंदर का रिफिल बनाना पड़ेगा. तो अगर एक स्टैंडर्डाइजेशन है कि इस वर्क को करने के लिए कैसे कैसे करना है, और हमने थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग उनको बता दिया है कि इस मार्कर को बनाने के लिए आपको कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो there will be a uniformity of procedures. When there will be a uniformity of procedures, wastage will be low. Okay, because you know what should be come after what. ठीक है, तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस लेवल हाई होगा. तो स्टैंडर्डाइजेशन विल मेक हाई लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस. So with training we make the proper standardization of products or procedures. ठीक है, less supervision. अगर ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो जो सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कम होगी. ठीक है, जैसे अगर उनको पता है कि आप ढंग से काम कर रहे हो, आपके स्किल्स उतने हैं कि आप कर पा रहे हो इस मार्कर को बनाने के लिए, तो सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो सुपरवाइजर वो जो मोर इम्पोर्टेंट वर्क है उस पर ध्यान दे सकता है. तो ट्रेनिंग डज नॉट एलिमिनेट द नीड ऑफ सुपरविजन. ठीक है, सुपरविजन का जो काम है वो एकदम खत्म नहीं कर देता है, लेकिन एक कांस्टेंट सुपरविजन, एक डिटेल सुपरविजन का जो काम है वो रिड्यूस करता है. Systematic imparting of skills. A systematic training program helps to reduce the learning time to reach the acceptable level of performance. अगर एक systematic टाइमिंग, एक लर्निंग टाइम के अकॉर्डिंग अगर सिस्टमैटिक वे में ट्रेनिंग दिया जाता है तो जो लर्निंग टाइम है वो रिड्यूस होता है. ठीक है,
उस परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लर्निंग टाइम, एक काम को करने के जो सीखने की क्षमता का समय है वो कम हो जाता है, ठीक है। The employee need not learn by trial or error or by observing programs and thus waste time if the formal training program exists in the organization. अगर कोई एम्प्लॉय ट्रायल एंड एरर मेथड से कर रहा है कि एक बार ये ढक्कन लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो फेंक दो, ठीक है, ऐसा ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहा है या फिर दूसरों को देख कर रहा है, तो उसमें वेस्टेज होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप देखकर काम कर रहे हैं या फिर ऑब्जर्व करके काम कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट एक्सेप्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग है, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग है, तो आपकी जो लर्निंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी क्षमता इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ इन्वेंटरी ऑफ स्किल्स। When totally new skills are required by an organization, it has to face great difficulties in the employment. Training can be used in spotting out promising workforce and removing defects in the selection process. हमने सिलेक्शन प्रोसेस किया था, सिलेक्शन प्रोसेस में हमने पहले स्क्रीनिंग किया, ठीक है, उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग तक आए, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स के बाद डिसीजन मेकिंग तक आए। लेकिन अगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग से हमें पता चलता है कि जो हमने सिलेक्ट किया था उसमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं, कि जो हम लोगों को सिलेक्ट किया था उसमें सच में वो एबिलिटीज, वो स्किल्स कोशिश करते हैं कि नहीं, वी गेट टू नो थ्रू ट्रेनिंग। अगर कोई डिफेक्ट्स है तो उनको हम निकाल देते हैं। अगर कोई ऐसा उसमें एम्प्लॉय है जो कि अपने काम से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो वी कैन स्पॉट आउट द प्रॉमिसिंग वर्कफोर्स, वी कैन नो who can be in a better position to make our organization more better, more increase our goodwill. Okay, it is better to select and train employees from within the organization rather than to seek the skilled employees from outside sources. ये बहुत अच्छा होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है उन्हीं को ट्रेन करें rather than कोई स्किल्ड एम्प्लॉयज बाहर से हायर करें। अगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगा तो एम्प्लॉयज का मोरालिटी भी हाई होगा, ठीक है। अगर एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा तो एम्प्लॉयज के एटीट्यूड में चेंज आएगा, एक बेटर एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इससे क्या होगा, ग्रेटर कॉपरेशन होगा, लॉयल्टी इंक्रीज होगी, ठीक है। With the help of training, dissatisfaction, complaints, absenteeism and turnover can be reduced among the employees. अगर एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है तो अगर वर्कर्स को काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो वो डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, एब्सेंटीज्म रेट भी कम होगा एंड टर्नओवर भी आल्सो रिड्यूस्ड अमंग द एम्प्लॉय। नाउ I will stop here only. We will do the next topic in the next class. Before that, I will take question answers. ये तो इस ग्रुप में 256 स्टूडेंट्स ऑलरेडी है, तो लिंक प्रोवाइड करके भी क्या होगा, आप लोग अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लीजिएगा, मैं उस ग्रुप में सबमिट कर दूंगी। एग्जाम कैसे होगा वो तो एडमिन को ही पता होगा। इंडक्शन क्या है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जहाँ पर आप लोग वेलकम कर रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों को जो न्यू एंट्रेंस है, न्यू एम्प्लॉयज है, उनको बता रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉलिसीज है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, आपके सुपीरियर कौन होंगे, आपकी ड्यूटीज क्या होंगी, ये सब इंडक्शन में बताया जाता है, ठीक है। इंडक्शन मैंने टाइप्स ऑफ इंडक्शन बता दिया है, नेक्स्ट क्लास में मैं एक और बार बता दूंगी, ये टाइम परमिट नहीं कर रहा है। फिलोसफी मतलब उसका क्या कोर है, मतलब ट्रेनिंग किस बेसिस पर रखा गया है। फिलोसफी मतलब होता है कि वो चीज आई क्यों है, वो एग्जिस्ट क्यों कर रही है, ठीक है, उसके पीछे का माइंडसेट क्या है, दैट इज फिलोसफी। लैटरल मतलब आसपास, मतलब वर्टिकली, लैटरल मतलब सेम लेवल पर शिफ्टिंग ऑफ जॉब, ठीक है। Yes, we can say training is a part of development. In development, we do training programs. So, training is a part of development.
मैं एक सिंगल ग्रुप में मैं ऐड हूँ, उसमें मैं सेंड कर दूंगी आपको PDF, फिर आप अपने फ्रेंड से ले लीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट मेथड्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।